इंटेंस चक दे इंडिया है तो फिर वैसी एक्टिंग होती है, हैप्पी न्यू ईयर है तो फिर वैसी एक्टिंग होती है। Can I, sorry. आपकी बहुत नजर रहेगी तो आप ज़्यादा फिल्मों को ज़्यादा एंजॉय करते हैं या म्यूजिक को? मैं यार लोगों को खुश करने को एंजॉय करता हूँ। मैं घर में भी ऐसा करता हूँ, बाहर भी ऐसा करता हूँ, स्टेज पे भी ऐसा करता हूँ। द मीडियम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक द एफर्ट एंड माई एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑन दैट मीडियम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे कहीं कोई फ़र्क नहीं लगता है। और मैं अब यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल ऐसे ही रखा जाता है जैसे फिल्मों में रखा जाता है। मैं लाइव शो करता हूँ, उसमें भी सब प्यार ही करते हैं। सो आई रियली एंजॉय माई सेल्फ। फॉर मी द मीडियम हैज़ नेवर बीन इम्पॉर्टेंट। Sorry, can I just add to his earlier response? May I? मुझे नहीं लगता KBC 3 में या 5वीं पास में कोई कमी रही है शाहरुख की तरफ से. I think both he did very successfully. I've been on record saying that. I think for both shows, particularly for KBC 3, he was very popular and successful, particularly with women and young people. It found a new audience. The rating system had changed because the sampling had changed. So maybe that did not reflect, but I think he did it particularly well. It's just that for people, a template had already been set, a particular kind of host, and Shah Rukh did it in his own way. I think even Panchvi Paas, at the year we were doing it, it was as successful as any other show that was going on. But I want to say this on record. There's a third show we're doing with Shah Rukh. I think of the 3 shows we've done with Shah Rukh, so far you'll see the program from May 2nd, and I've said this to other people. This is the best that he's done of these 3 shows. I think that this is the best of the 3 shows that we've done, and I think audiences will really have something to look forward to because it's a great fit with Shah Rukh, as he said himself. He's a people's person. He really enjoys playing with the people, playing with the relationships of the people, talking about the kind of questions that are coming. A lot of fun, laughter, song, dance, jokes, all sorts of things happening on stage. It's a very lively show. It's a fun show for the whole family. And I really want to thank Ant TV for this opportunity of bringing this format with a very refreshing idea and getting somebody like Shah Rukh on the show because he's the best person to have done the show. So I want to go on record saying that. Thank you. Thank you. एक्चुअली हर शो का अपना एक मूड होता है. KBC वॉज ऑलवेज, उसके स्टेक्स बहुत हाई थे. उसके सवाल जवाब, उसका पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो ढक 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 ढक. It's based on a gripping, thrilling, taking you to a level of perhaps even fear कि यार पैसा जीतने के लिए जाना है. Who wants to be a millionaire या कौन बनेगा करोड़पति में. पांचवी पास थोड़ा सा थोड़ा एम्बैरेसिंग था कि पेरेंट्स को या बड़े लोगों को 5वीं क्लास के सवाल नहीं मालूम है, तो वो एक थोड़ा मजाकिया था. तो हर शो का अपना एक मूड होता है. इस शो का मूड जैसा बाबू ने कहा या सेट किया है, एक्चुअली इसकी जो पूरी क्रिएटिव टीम जब तक मेरे पास पहुंची थी तो एक बड़ा अच्छा आइडियोलॉजी लेकर आई थी कि ये लोगों का शो होना चाहिए जो घर में बैठकर आंटी अंकल भाई बहन कज़न और इन्जॉय कर सकें, फ़न कर सकें, क्लीन फ़न, हैप्पी फ़न, और करते करते जो सवाल भी हैं. सी दिस शो लेंड्स इटसेल्फ टू दैट. तो जैसा शो का मूड होता है, जैसा फिल्म का मूड होता है, अगर फिल्म इंटेंस चक दे इंडिया है तो फिर वैसी एक्टिंग होती है. हैप्पी न्यू ईयर है तो फिर वैसी एक्टिंग होती है. अगर थ्रिलर है तो वैसी. तो शोज़ के अंदर भी तो इम्प्रोवाइजेशन इज़ अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द शो. दिस शो इज़ वेरी लाइट, स्वीट, ब्यूटिफुल, breezy, happy, and makes you win money, and I think it has a far-reaching effect for the common man. It is very attractive to the common person when I hear the questions, so I play it like that. I'm not dressed like a common man, but the way I actually belong to that background, so I understand the small worries. कोई रो पड़ता है शो पे, कोई खुश होता है, कोई आंटी अचार का कुछ पूछती है, कोई साड़ियों के बारे में बात करता है. I'm able to somehow involve all of that and put it in. So for me it's a very novel show. मैंने आज तक कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं लोगों के साथ ये बातचीत घरेलू कर सकूं. And it is a question answer show finally. और 1 करोड़ रुपए का प्राइस है. So it is it's a very impressive winnings that you can take back home from the show. मैं जब अंदर आने से पहले मैं डिस्कशन कर रहा था, मेरे साथ कोई आए हुए थे बिजनेसमैन, कि जब लोग बजट जैसी बड़ी चीज़ एक्टर्स से पूछते हैं वो ना मुझे बड़ा अजीब लगता है, बिकॉज ये ना बहुत बड़ा इट्स अ वेरी बिग डिस्कशन. तो मैं तो इससे दूर ही रहूँ कि मैं बोल दूँ मैं चाहूँगा कि आम आदमी का भला हो जाए, थोड़ी सब्सिडीज़ बढ़ जाएँ, थोड़ा टैक्स कट जाए, थोड़ी नॉर्मल चीज़ें अच्छी हो जाए, आटा दावल चाल, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं यार. ये तो मेरे जैसे बेवकूफ़ एक्टर्स से मत पूछो प्लीज़.
तो मैं इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है जब सेलिब्रिटीज़ ऑफ द कफ बजट के बारे में बात कर देते हैं। सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, बट येस, हैविंग सेड दैट, आई विल लिसन टू इट, अंडरस्टैंड इट, एंड आई होप इट इज़ अमेजिंग for the economy of the country, and we all have to respect that and follow it through and make sure that all of us are diligently and honestly doing what the budget gives out to us. Hopefully yes, it will be wonderful for most of the people, businesses. हम फिल्म इंडस्ट्री में तो होपफुली कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे हमारा भी थोड़ा सा भला हो, not in terms of just subsidies but in attracting people to the business. I think that's the most important thing a budget can do, attract people to businesses and increase the capital and monies in the economy. Having said that, that's a separate thing. इंडस्ट्री में सबसे शाना कौन, हमारा जो शाना है, मैंने जैसे बताया वो शान के बारे में, वो थोड़ा सा डाउन हो, अप हो, खुश हो, दुखी हो, लोगों को खुश कराते रहो. So I find myself quite shana as far as that is concerned. शाना in terms of how मुंबईकर्स use it, शान पट्टी, शाना है भाई, तो वो मैं ज़्यादा शाने लोगों से मिलता ही नहीं यार. मेरे को तो सब भोले भाले स्वीट ही लोग हैं मेरे साथ जो काम करते हैं. सो आई डोंट नो इन द इंडस्ट्री हु इज़ द मोस्ट शान.